السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا سیاحت چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بالآخر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کھنڈر حویلی میں داخل ہوا جسے دیکھنے اور جس کی ہر چیز کو چھونے کی مجھے چاہت تھی۔ یہ امبر اور ماریا کی حویلی تھی جن کے بارے میں اس گاؤں میں بہت سی روایات مشہور تھی۔ میں نے بھی امبر اور ماریا کے بہت چرچے سن رکھے تھے۔ مثلاً ایک رات شہزادی ماریا حویلی کی چھت پر سوئی ہوئی تھی کہ اس کے حسن اور خوبصورتی پر فدا ہو کر امبر یعنی آسمان سچ مچ اس پر جھکایا تھا، لیکن اس تریخی گاؤں کی اس تریخی پریم کہانی میرے حلق سے نہ اترتی تھی۔ میں نے یہ کہانی اپنے دوستوں کی زبانی سنی تھی جن کا اس پر کامل یقین تھا، کیونکہ وہ ہندو تھے اس لیے میں اس پر اعتراض نہ کرتا، لیکن دل میں تجسس تھا کہ اس قصے کی آخر سچائی ہے کیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ کبھی نہیں مان سکتا تھا کہ امبر یعنی آسمان مجسم حالت میں کسی انسان کے نہ صرف پاس آئے بلکہ اس پر عاشق بھی ہو جائے۔ جیسے تیسے میں نے اپنے دوستوں کو اس حویلی کا پرسرار وجود دیکھنے کے لیے راضی کر لیا۔ نہ صرف راضی کر لیا بلکہ ہم اس حویلی میں ایک رات رکنے کا بھی پروگرام بنا چکے تھے۔ حویلی کیا تھی، دلکش، دل فریب، بہت شاندار، جس کے طرز تعمیر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ طرز تعمیر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ حویلی واقعی کسی مسلمان نے تعمیر کروائی تھی۔ بہرحال میں اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا حویلی کا کونا کونا دیکھ رہا تھا۔ جب ہم اوپری حصے میں پہنچے تو ایک کمرے پر زنگ آلودہ تالا دیکھ کر میری تجسس فطرت نے اکسایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک پرانی سی اینٹ اٹھا لی۔ میرے دوست مجھے اس اقدام سے منع کرنے لگے، لیکن اگر میں ان کی بات مان لیتا تو میری مثال کوہے کے پاس پہنچ کر بھی پیاسے کا پیاسا ہی رہتا۔ سو میں نے ان کی ایک نہ سنی اور تالے پر اینٹ سے ضرب لگایا۔ زنگ آلودہ تالا اینٹ کی ضرب نہ سہ سکا اور کھٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میں آگے بڑھنے لگا کہ چندر بوش نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور آگے بڑھ گیا، مجبوراً وہ بھی میرے پیچھے لپکا۔ ایک بہت شاندار سی خوابگاہ تھی، ایک جہازی سائز کی مسہری اور دیگر استعمال کا فرنیچر کمرے میں موجود تھا۔ ایک دقت یہ تھی کہ کمرے میں جالے بہت تھے۔ میں نے اپنا سفری بیگ ایک سائڈ پر رکھا اور جالے اتارنے صفائی کرنے میں جٹ گیا۔ میرے تینوں دوست ایک کونے میں دبکے کھڑے تھے۔ وہ اس وقت کو کوس رہے تھے جب انہوں نے میرے ساتھ اس حویلی میں آنے کی حامی بھری تھی۔ صفائی کرتے کرتے کھٹک کی آواز کے ساتھ کوئی چیز گری تو میں ٹھٹک گیا۔ وہ تینوں مزید سہم گئے۔ میں نے خود کو تسلی دی کیونکہ میرا دل بھی یک بارگی زور سے دھڑکا تھا، مگر میں ان تینوں پر اپنی یہ کیفیت ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے اور کچھ نہ سوچا تو اپنی نظروں کے عین سامنے گری چیز کو دیکھا۔ دن کی مدھم روشنی میں وہ چیز صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ کوئی کتاب تھی۔ میں نے وہ کتاب اٹھا لی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرے دوست بھی اب فطری تجسس سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک فاتحانہ نگاہ ان پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں دیکھا یہ محض ایک کتاب ہے۔ جب میں نے اسے کھولا تو مجھ پر مزید حیرانگی وارد ہوئی کیونکہ وہ کتاب نہیں بلکہ قدیم اردو میں لکھی ڈائری تھی۔ میرے ہندو دوست فوراً میرے قریب آ کے، ان میں سے کوئی بھی اردو پڑھنا نہیں جانتا تھا، وہ میرے گرد گھیرا ڈال کر صاف کی گئی جگہ پر بیٹھ گئے تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اے پیاری ڈائری، ہم شہزادی ماریا تم سے مخاطب ہیں۔ میں نے آسان لفظ میں پڑھنا شروع کیا کیونکہ اردو کی گہرائی میں بھی نہیں جانتا تھا۔ بچپن، محل نما حویلی، کھلونے، سہیلیاں اور پھر تنہائی کی داستان لکھی تھی جس کو پڑھتے پڑھتے میں نے بور ہو کر ڈائری بند کر دی۔ میں ابھی ڈائری بند کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر اس سطر پر پڑی۔ ہمیں امبر ملا رات کو، وہ امبر جس کو ہم صرف دور سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وسعتوں کو چھونے کی خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، مگر رات تو
ہم خود حیران رہ کے اپنی حویلی کی چار دیواری کے گھٹن زدہ ماحول سے اکتا کر ہم نے حویلی کی چھت پر بستر لگوا لیا۔ ہم نیلے اور کھلے آسمان کی گود میں بڑے ہزاروں لاکھوں ستاروں کے جھلملانے کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں پڑھتے پڑھتے رکا، ایک نظر دوستوں پر ڈالی، وہ سب ہم تن گوش تھے۔ میں نے پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہماری تمام خواہشوں میں ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ہم کھلے آسمان کی نیلی وسعتوں میں دونوں باہیں پھیلائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جائیں اور پھر کبھی بھی واپس نہ آئیں۔ ابا حضور بادشاہ وقت کے مشیر خاص ہیں، ہر وقت کی مصروفیت وہ گھر بھی نہیں آتے، ہماری بھی کم ہی خبر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی حویلی میں جیسے ہم قید ہیں، خادم بے پناہ ہمارے ارد گرد منڈلاتے ہیں، مگر خادموں اور کنیزوں کی کثرت سے ہٹ کر بھی ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو کہ ہمارا غم گسار ہو اور ہماری تنہائی بانٹ لے، جسے ہم روٹ سکے، جسے ہم منا سکے۔ کہنے کو تو ہم شہزادی ہیں، ہماری کنیزیں اور خادم ہمارے سونے کا انتظار کرتے رہتے۔ جب ہم نیند کی وادی میں کھو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی آرام کی غرض سے اپنی اپنی آرام گاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج رات بھی ہم آسمان کی گود میں ٹمٹماتے تاروں کو گنتے گنتے سو کے ہمیں اجنبی لمس اور کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر ہم گہری نیند میں تھے، اس لیے آنکھیں نہ کھول پا رہے تھے۔ اجنبی لمس ہمارے بدن میں عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا، جس سے مجبور ہو کر ہمیں اپنی نیند توڑ کر آنکھیں کھولنا پڑی۔ ہم نے آنکھیں کھولی تو ایک اجنبی نوجوان کو اپنے بستر کے پاس کھڑے پایا جو ہمیں گور رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ ہمارے لمبے گھنے بالوں میں تھا۔ ہم ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ کے، گستاخ لڑکے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری مسحری تک پہنچنے کی؟ ہم نے شاہی جاہ و جلال سے لبریز غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اجنبی سے دریافت کیا، گستاخی معاف شہزادی حضور، خاتم کو عنبر کہتے ہیں۔ اجنبی جھک کر ادب سے بولا، ہمارا غصہ بڑھنے لگا۔ ہماری حویلی میں آدھی رات کو بغیر اجازت گھسنے کی کم سے کم سزا بھی ہم موت ہی تجویز کرتے ہیں۔ ہم نے پہرے پر موجود خادموں کو بلانے کے لیے تالی بجانا چاہا تو اس نے آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے ہاتھ چھڑاتے، اس نے اپنی آنکھیں ہماری آنکھوں میں گاڑ دی تو ہم اس کی آنکھوں میں جیسے ڈوب گئے۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں جیسے کوئی سحر تھا جس کے زیر اثر ہم اس کی طرف کھینچ رہے تھے۔ ہم کچھ بولنے ہی والے تھے کہ عنبر بول پڑا، شہزادی حضور، میں عنبر ہوں، وہ عنبر جس کی وسعتوں میں آپ کھو جانا چاہتی ہیں، جس کی گود میں ہزاروں لاکھوں ستاروں کو آپ اپنی مانگ میں سجانا چاہتی ہیں۔ اس کا انداز سرے گوشیانہ تھا۔ ہم دنگ تھے کہ یہ اجنبی کو کیسے معلوم ہوا، ہم کیا سوچتے ہیں اور کس چیز کی تمنا ہے۔ یہ تو ہمارے دل کی باتیں ہیں، وہ ہماری سوچ بھی جیسے پڑھ رہا تھا۔ شہزادی حضور، ایک بار اوپر نظر اٹھائیے، آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں ہی عنبر ہوں۔ ہم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان اور ستارے اپنی اصلی حالت میں گردش کرتے نظر آ رہے تھے، مگر کہیں بھی ان کو ڈانپنے والا ان کا غلاف آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان اپنی تمام تار نیلاہٹوں کے ساتھ غائب تھا۔ ہم سخت حیرت زدہ ہوئے۔ اب ہم نے حیرت سے آنکھیں مل کر ایک بار پھر اوپر دیکھا۔ اوپر کا منظر پہلے سے مختلف نہ تھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم حیرت کے سمندر میں ڈوبے جا رہے تھے۔ عنبر نے اپنی سحر انگیز آنکھوں کے پہرے دار پلکیں جھپکا کر ہمیں دیکھا۔ ہماری سمجھ سے یہ صورتحال عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ تھی، اور عنبر کی شخصیت سحر انگیز۔ جلدی ہی ہم عنبر کے ساتھ گل مل گئے۔ ہر رات جب سب سو جاتے تو عنبر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں آنکھیں بند کرنے کو کہتا اور ہم انجان دیسوں کی سیر کو نکل جاتے۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو آسمان ان کے سروں پر سے لپیٹ کر انسانی قالب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس راز کے ہم راز ہونے پر فخر محسوس ہوتا اور عنبر کے دیوانے ہوتے کہ یہاں پر ڈائری کے چند اوراق خالی تھے۔ میں نے بے صبری سے ڈائری کے اوراق پلٹے۔ اگلے اوراق پر شہزادی ماریا کچھ یوں لکھتی ہیں:
अंबर हमें बहुत अजीज हो गया है। वो दिन को चला जाता है तो हम सो जाते हैं, मगर हमारी रातें अंबर की हमराही में बहुत हसीन गुजरती हैं। आज रात हमने अंबर से अपनी बेकरारियों का जिक्र किया तो उसने कहा कि इसका भी एक एक पल कांटों पर गुजरता है। सच तो ये है कि अब हमें अंबर की जुदाई नागवार गुजरती है। हम अंबर को खोना नहीं चाहते। मैं यहीं तक पढ़ सका क्योंकि आगे सारी डायरी खाली थी। इससे आगे ये दास्तान मोहब्बत पढ़ने के लिए मैंने डायरी का एक एक वर्क बहुत ध्यान से पलटा, मगर बेसुध इससे आगे एक लफ्ज भी ना था। मैंने बेबसी से अपने तीनों दोस्तों को देखा। वो आगे सुनने के लिए बेताबी से मुंतजिर थे। मैं कुछ भी बोले बगैर उठा और चकोर से दरीचे के पास जाकर खड़ा हुआ। रात बाहर अपनी तमाम तर तरीकियों के साथ फैल चुकी थी। रात के अंधेरे में हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग टॉर्च जला चुके थे और डायरी की कहानी में इतने मगन थे कि वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मैं इस अजीबो गरीब सेहतनामे के बारे में सोच रहा था। खामोशी और हो का आलम ऐसा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो इसकी आवाज को शोर में गिना जाता। एकदम से न जाने किस तरफ से ठंडी हवा का एक झोंका आया। झोंका बहुत तेजी से मुझे छूकर गुजरा तो मेरे तन बदन में कपकपी सी दौड़ गई। मैं कांप कर रह गया और डायरी मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मैं बेख्याली में इसे उठाने के लिए झुका तो झुके झुके ही उछलकर 2 कदम पीछे हट गया और खौफसदा निगाहों से डायरी को देखने लगा। डायरी जमीन पर खुली पड़ी थी और इसमें खुद ब खुद कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई अनदेखी हस्ती नजर न आते हुए लिखने में मसरूफ हो। मेरे दोस्त फर्श पर मोटी सी दरी बिछाए दीवार से टेक लगाए हुए थे। एक अनजानी सी कशिश मुझे डायरी की तरफ खींच रही थी, मगर खौफ मुझे जकड़े हुए था। बिल आखिर कशिश व तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गए और मैंने बढ़कर डायरी उठा ली। इसमें जो लिखा गया था वो कुछ इस तरह से था। उस दिन अंबर हमारा हाथ पकड़कर हमें जिस जगह ले गया उस जगह को देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। वो कोई सब्जाजार था जो पहाड़ी पर वाक़या था। दूर दूर तक सब्ज घास का फर्श बिछा था। रंग बिरंगे फूलों के पौधे लहलहा रहे थे। खुश रंग परिंदे बोलियों में गुनगुना और चहचहा रहे थे। सबसे हैरत अंगेज ये बात थी कि हम जब अपने महल की छत से अंबर के साथ चले थे तो रात का वक्त था। यहाँ पर तो दिन का समा था। धूप नहीं मगर अंधेरा भी नहीं था। हमने अंबर से इस अजीबो गरीब जगह के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया, शहजादी हजूर, ये वादिये गुलजार है। यहाँ कभी रात नहीं होती। ये जगह आम तौर पर लोगों की नजरों से ओझल रहती है, मगर मैं इस दुनिया के बहुत से अजीबो गरीब जगह से न सिर्फ वाकिफ हूँ बल्कि मेरा आना जाना भी है। वो हमेशा हमसे मोदबाना लहजे में बात करता था। ये अंबर का साथ था जिसने हमें बहका दिया। हमने अंबर का हाथ पकड़ लिया तो इसने चौंक कर हमें देखा और नरमी से अपना हाथ छुड़ा लिया। शहजादी हजूर, खादम इस गुस्ताखी का हकदार नहीं है। हम ये सुनकर चुप ना रह सके। हमें अंबर का यूं कहना नागवार गुजरा। अंबर, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम हमेशा यूं ही तुम्हारे हाथों में हाथ डाले रहें। क्या तुम हमें ये हक दो कि हमने नहायत चाह से इसकी सहरंगेज आंखों में देखा। वो कुछ परेशान हो गया और पहलू बदल कर बोला, नहीं शहजादी, ये मुमकिन नहीं। जैसे आग पानी का मेल नहीं हो सकता वैसे ही जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकते। अंबर की नीली आंखों में हल्का हल्का पानी तैर रहा था। फिर इसने एक लंबी आह भर कर कहा, मैं अपनी दुनिया का मुजरम हूँ, ये हकीकत है। ना जाने कब तक यहाँ हूँ, कब यहाँ से जाना पड़ जाए। मैं आपको ये अजियतनाक जिंदगी नहीं दे सकता। हम तड़प उठे। बेकरारी से हमने इसका हाथ पकड़कर अपनी मुट्ठी में ले लिया। ऐसा मत कहो अंबर, क्या जिस अजियत में हम अब गिरफ्तार हैं ये अजियत तकलीफें नहीं है मेरे लिए। क्या ये तड़प तुम हमें सौंप दोगे? हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत खुद बहुत अजियतनाक है। हमें ये जुदाई और दूरी खलती है। हमने इसका हाथ आंखों से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्क रवा थे। अपनी
अपनी उंगलियों पर नमी महसूस करके अंबर ने चौंक कर अपने हाथ उठाए, हमारी आंखों में आंसू देखकर नरमी से इनको साफ किया। इसके लम्स ने जल्दी पर तेल का काम किया। हमारे बदन में दर्द की मीठी मीठी लहरें दौड़ने लगी और आंसू तेजी से बहने लगे। मत रोइए खुदारा, मत रोइए, इस मोहब्बत का अंजाम बहुत भयानक भी हो सकता है। दिल को रोक लीजिए, इस पौधे की जड़ को मजबूत मत होने दें, वरना बहुत गजब हो जाएगा। इतना सुनकर हम और फूट फूट कर रोने लगे। आंसू आंखों से बहते रहे, न जाने कब के रुके हुए आंसुओं को आज बहने का मौका मिल गया था। अंबर ने हमें सीने से लगा लिया। जब आंसुओं की रफ्तार थमी तो हमें एहसास हुआ कि हम अंबर की बाहों के हिसार में हैं और वो बहुत मोहब्बत से हमें थपक रहा है। अब बात हमारी बर्दाश्त से बाहर थी। हमने इसको मजीद करीब करके सख्ती से अपने गले लगा लिया। काफी देर हम यूं ही एक दूसरे के साथ लिपटे रहे। फिर अंबर ने हमें खुद से जुदा करके एक पत्थर पर बिठा दिया। शहजादी, मैं अब भी यही कहूँगा कि इस ताल्लुक का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मोहब्बत हमें कुछ नहीं देगी बर्बादी के सिवा। अंबर का कमजोर पड़ता लहजा इस बात का यकीन था कि वो खुद अपनी कही बात का इनकारी है। बस अंबर, हमने सोच लिया है कि तुम ही हमारे शौहर बनोगे। हमने जिंदगी में पहली बार खुद को किसी मर्द को सौंप दिया है। अब हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। शहजादी हुजूर, मैं हकीकी इंसान तो नहीं, सिर्फ हर रात इंसान का रूप धार लेता हूँ। मैं तो अंबर हूँ। अंबर ने उठते हुए बेबसी से कहा, तो क्या हुआ, रात को तो तुम हकीकी इंसान होते हो। ये देखो, हमने अंबर के बाजू पर चुटकी काट कर इसे एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो इस वक्त इंसान ही है। चुटकी शायद जोर से कटी, इसलिए वो दर्द से उछल पड़ा। हमें रात का ये इंसान कबूल है। हम तुम्हारे साथ के लिए दिन को रात और रात को दिन बना लेंगे। हम अंबर के कंधे पर सर रख कर ख्वाबनाक से लहजे में बोले। लेकिन शहजादी, अंबर ने कुछ कहना चाहा। बस अंबर, हम फैसला कर चुके हैं। हम फैसला कर चुके हैं, या तो तुम हमसे शादी करोगे या हम अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेंगे। हमने हाथ उठाकर इसको अपना फैसला सुनाया, जिस पर इसने अपना सर झुका लिया। हम हर रात मिलते और तजदीद वफा करते। हमें शादी की जितनी जल्दी थी, अंबर उतना ही टाल मटोल कर रहा था। फिर यूं हुआ कि बाबा जान बादशाह वक्त के महल से लौट आए। जब बाबा ने हमें हवेली की ऊपर वाली छत पर बिस्तर लगवाते देखा तो हमें हुक्म दे दिया कि हम आज के बाद यहाँ नहीं सोएंगे, क्योंकि जवान और खूबसूरत लड़कियों को तन्हा पाकर जिन आशिक हो जाते हैं। हमें बाबा जान का हुक्म मानना पड़ा और हम अपनी ख्वाबगाह में सोने लगे। हवेली में सख्त पैरे होने की वजह से हम रात को उठकर छत पर ना जा सकते थे, इसलिए हम रोशनियां गुल होने का इंतजार करने लगे। जाने कब इंतजार करते करते हमारी आंख लग गई और हम सो गए। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हमें महसूस हुआ कि हमारे पहलू में कोई मौजूद है और गहरी नजरों से हमें देख रहा है। खुद को किसी की नजर के हसार में पाकर हम चौंक कर उठ बैठे। अभी हम कुछ कहने ही वाले थे कि एक हाथ ने हमारे मुंह को दबा लिया। हमारी आवाज घुट कर रह गई। मैं हूँ अंबर। सरगोशी सुनकर हमारी जान में जान आई। अंबर, ये तुम हो? इतना कहकर हमने इसे गले लगा लिया और फिर वो रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात साबित हुई, जिसके मुकाबले में हमें दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। मगर उस रात ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। उस रात जिस बात का ऐसा तूफान आया जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। अंबर, हम शादी कब करेंगे? हमने अपना पुराना सवाल दोहराया। बहुत जल्द करेंगे शादी। अंबर का जवाब हमारे अंदर खुशियां और उम्मीदों के दीप जला देता। एक दिन हमें पता चला कि हम में कुछ जिस्मानी तब्दीलियां आ रही हैं। ये तब्दीलियां और कुछ नहीं बल्कि हम हमल से थे, यानी हम अंबर के बच्चे की माँ बनने वाले थे। अंबर हमेशा ये कहता, बस कुछ दिन और शहजादी, मैं देवताओं को मना लूंगा, फिर हम हमेशा के लिए जीवन साथी बन जाएंगे। इसी तरह पूरे 9 महीने गुजर गए। हमने अपनी एक कनीज को अपना हमराज बना लिया जो हमारा ख्याल रखती, और इसने हमारे राज को भी राज रखा। अंबर भी हमारा बहुत ख्याल रखता। जिस दिन हमने एक बच्चे को जन्म दिया, उस रात हम बहुत बेचैनी से अंबर का इंतजार करते रहे, मगर
अंबर ना आया। हमने अपने बेटे का चेहरा तक न देखा। हम चाहते थे कि अंबर हमसे पहले बच्चे को देखे। कितनी ही रातें गुजर गई, अंबर लौटकर न आया। हम इंतजार ही करते रह गए अंबर का। इस तरह अंबर का हमें छोड़कर जाना हमारी रूह पर कारी ज़रब लगा गया। हम अंदर से टूट से गए थे। बाबा हजूर भी हमारे पास ना थे। ये एक तरह से हमारे लिए अच्छा था। हमने अपने हमल की हालत और बच्चे की पैदाइश 7 पर्दों में छुपा रखी थी। ऐसे ही एक दिन हम अपने कमरे के चकोर दरीचे में खड़े आसमान और इसके दामन में मौजूद तारों को देख और अंबर से लौट आने की फरियाद कर रहे थे कि हमारी कनीज खास ने हमें खबर दी कि हमारा बच्चा पालने में मौजूद नहीं। हम पागलों की तरह बच्चे को पूरी हवेली में तलाश करने लगे। हमने पूरी राजदारी के साथ बच्चे को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर अंबर की तरह हमारा बच्चा भी कहीं गायब हो गया था। जब हम हर तरह से बच्चे को तलाश कर चुके तो इसको ना पाकर हमारी हिम्मत हमारा साथ छोड़ गई। हमने एक दिन अपने हीरे की अंगूठी चाटकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हमारे बाद हमारी ये हवेली उजड़ गई। हमारी कनीज खास ने हमारी दास्ताने राज रखने की बजाय लोगों में मशहूर कर दी। ये आखिरी सतर थी। इसके बाद डायरी पर कुछ ना लिखा था। हमारे दोस्त हैरानगी से अपनी अपनी जगह पर जमे बैठे रहे। हम लोग ये दास्तान पढ़कर हैरान थे। हिंदू दोस्तों का इत्काद इस बात पर और पुख्ता हो गया, मगर मेरे जहन में कुछ खटक रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ तो गलत है, मगर इसका पता चलाने के लिए मेरे पास कोई जरिया न था। हम अपनी अपनी सोचों में थे कि अचानक दरो दीवार कांपने लगे, जैसे जलजला आ गया था। हम सब अपनी जगहों से उठकर दरवाजे की तरफ भागे, मगर इससे पहले कि हम कमरे से बाहर निकल पाते, कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे एक धमाकेदार आवाज से बंद हो गए। मैं और मेरे दोस्त खौफ से थरथराने लगे। टांगों से जान निकलती महसूस हुई। ऐसे में अचानक कमरा रोशनी में नहा गया। ऐसी रोशनी थी जैसे दिन निकल आया हो, मगर ये रोशनी कहाँ से आ रही थी इस बात का कुछ पता न था। कुछ ही लम्हों के बाद कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। हम लोग डर कर एक दूसरे के साथ लिपट गए। मेरे तीनों दोस्त राम राम और मैं खुदा को याद करने लगा। कुछ ही पल में हर तरफ भयानक कहके गूंजने लगे। हम खौफसदा से दीवार के साथ जा लगे। एक बार फिर से कमरा रोशन हो उठा। अब जब रोशनी हुई तो हमारी चीखें निकल गई, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा कद आवर शख्स खड़ा था जिसका सर इतना ऊंचा था कि छत के साथ लग रहा था। इसका चेहरा इंसानी और बाकी सारे जिस्म पर लंबे लंबे काले बाल थे। वो कुछ यूं गोया हुआ, तुम लोगों की वजह से मैं आज अपने पुराने राज तक पहुंच पाया। मेरी माँ कौन थी ये मैं आज तक न जान पाया था, मगर आज तुम इंसानों ने मुझे मेरी पैदाइश के राज तक पहुंचा दिया। एक तरह से तुम लोग मेरे मोहसिन हो। इतना कहकर वो इंसान नुमा हिवान रुका और फिर चंद लम्हों बाद बोला, मगर मैं अपने मोहसिनों पर एहसान नहीं करता। मैं हिकला कर अभी इतना ही कह पाया था कि इसने मेरी बात उचक ली। शहजादी मारिया और अंबर का बेटा, वो अंबर जो अंबर न था, दर हकीकत वो एक खौफनाक और सरकश गैर मजहब जिन था जो कि हुस्न की कैद में आ गया था। और वो खौफनाक कहके लगाने लगा। मेरे बाप ने मेरी माँ से ये सच छुपाया था कि वो एक जिन है जिसे मेरी माँ अंबर जान का दिलो जान से चाहती रही। वो दरअसल अपने कबीले का मुजरिम जिन था जिसे कबीले वालों ने कबीला बदर कर दिया था। और ऐसे ही फिरते फिराते वो जिन जब मेरी माँ यानी शहजादी मारिया की हवेली की छत पर से गुजरने लगा, इसकी नजर शहजादी पर पड़ी। वो दिल हार बैठा और अंबर बनकर शहजादी के पास पहुंच गया। इधर जब जिन के कबीले वालों को पता चला कि इनका सजा याफ्ता मुजरम एक इंसानी लड़की पर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कानून कबीला की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस इंसानी लड़की के साथ न सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक अस्तवार किया बल्कि इसके साथ शादी करने वाला है, तो पहले उन्होंने इसे समझाया। जब वो ना माना तो इसे हमेशा हमेशा के लिए यानी ताहयात कैद कर लिया। फिर जनात के कबीले ने मुझे भी पाल
पालने से उठवा लिया। ऐ इंसानों, अब तुम ये राज जान गए हो कि शहजादी मारिया का असल किस्सा क्या था, इसलिए अब तुम लोगों को जान से हाथ धोने पड़ेंगे। इस कमरे में मेरे बाप का एक गले में डालने वाला हार मौजूद है, जिसे हासिल करके मैं आज सदियों बाद अपने बाप को कैद से छुड़ा लूंगा। ये कहकर इसने अपने दोनों हाथ हमारी तरफ लंबे लंबे किए तो इसके हाथों से आग के शोले निकलकर हमारी तरफ लपके। इससे पहले कि वो आग के शोले हम तक आते, हमारे गिर्द खुद ब खुद एक हसार बन गया और हसार के बाहर एक हसीनो जमील लड़की जाहिर हुई। ऐ बदबख्त जिन, ये तुम्हारी भूल है कि तुम इन इंसानों की जान लोगे। ये कहकर लड़की ने हाथ में पकड़े हुए नीले पत्थर का हाथ जिन की तरफ करके झटका तो इस हार में से आग तेजी से निकलकर जिन पर झपटी। इससे पहले कि वो संभल पाता, आग ने जिन को अपनी लपेट में ले लिया और सूखी लकड़ी की तरह इससे जला गई। फिर कमरे में भी हर तरफ आग लग गई, हर तरफ धुआं ही धुआं बिखर गया। मेरे दोस्त खांसते हुए अपने होश खो बैठे। धुएं से मेरे दोस्त बेहोश हो चुके थे। अब मेरा भी दम घुटने लगा और मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो गया। जब मुझे होश आया तो हम हवेली के सामने आड़े तिरछे पड़े थे और वो लड़की चंदर के सर पर हाथ रख के शायद कोई अमल कर रही थी। मैं एकदम उठकर बैठ गया। तुम कौन हो ऐ नेक दिल लड़की, और मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही हो? इसने क्योंकि हमारी जान बचाई थी इसलिए मैंने इसे नेक दिल लड़की कहकर मुखातिब किया। हम वो हैं जिसकी दास्तान इस गांव की फजाओं में गूंज रही है। शहजादी मारिया, मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाया और इसकी बात ध्यान से सुनने लगा। सुनो, हमने तुम्हारे दोस्तों की याददाश्त मिटा दी है ताकि यहाँ से जाने के बाद तुम लोग हमारे साथ प्यार के नाम पर होने वाले धोखे के बारे में किसी को ना बता सको और हमें मजीद बदनाम न कर सको। इतना कहकर इसने एक कहका फजा में बखेर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी याददाश्त भी मिटानी है। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं अपनी जगह से खिसक कर पीछे हटता जा रहा था। मैंने उठकर भागने की कोशिश की तो ठोकर खाकर गिर पड़ा और शहजादी मारिया मेरे सर पर पहुंच गई। इसने अभी मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फजा हक की सदाओं से गूंजने लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान की आवाज जैसे ही इसके कानों में पड़ी तो वो डर कर नहीं कहती हुई पीछे हटने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई और मैं वहीं सजदा रेज़ हो गया। रब करीम ने हम लोगों को इस भयानक जिन और इस खूबसूरत बदरूह के चुंगल से सही सलामत बचा लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।